down to 1. Okay, so if we multiply these numbers, then we can have a result in the form of 120, and 120 is the factorial of 5. Okay, so how can we store the factorial of a number in the form of array? Because the factorial of a number, let's say I want to find the factorial of a number 100. So there are 158 digits in the factorial of 100. So I'm not able to store this number in a simple data type or primitive data type, you can say. So all the primitive data type are defined by the compiler, so there is no primitive data type which can store or hold a 158-bit number. Okay, so maximum in C language we can store 20 digit. Am I right, class? पढ़ा होगा आप लोगों ने ये. So maximum in C language we can store only 20 digit, which is unsigned long. Okay, so long is a 19 digit number. उसकी कुछ रेंज होती है. So 19 digit can be stored with its range using a long, but unsigned long. So I'm writing it here. So you just need to remember this also. Please note down everything what I'm writing on the screen. Okay, so by using long, you can store maximum a 19 digit number, and by using unsigned long, you can store 20 digit number. Okay, so if we want to make or create our own data type, so we can create our own data type in C language, and for that we need to use structured data type. And the property of structure, we can also define its method in C language. We have to define the structure. So basically, how can we create the structure? Again, ultimately the solution is using array. Okay, so in structure you can also create array, or you can use multiple long to make a single data type. Okay, so this time we will be knowing about this solution only. How can we store the factorial of a larger number in the form of array? So let's have a look on this. Okay, one more thing is here, the factorial of 200 contains 375 digit. Okay, so ये important चीजें हैं जो आपको एक तरह से याद रखनी है कि 100 के फैक्टोरियल में कितने डिजिट होते हैं और 200 के फैक्टोरियल में कितने डिजिट होते हैं. So this is very common questions, and these kind of question can be asked in the interview or technical rounds. Okay, is there any confusion, class, till now? I just told you the size of long in C language, the maximum range of number of digits we can hold in any data type in C language is 20 digit. Okay, in the reference of numeric or numbers. Okay, so here we will be following the concept. So what we have to do to store the factorial of a number? So we are going to follow a concept. Let's say I want to store, so in this I'll be following the concept that I'll be using an array. Okay, so the smallest number or smallest factorial is 1. Okay, and the factorial of 1 and factorial of 0 both is same, and we can store them in an array. Okay, so let's say I'm using an array and I have defined the size of array. Let's say I have defined the size of array. For example, I'm using an array of size 500 because maximum digit I want to store in array is 500. So I can calculate the factorial of any number which has 500 digit at most. Okay, so what concept I'm going to use here? To store the factorial of a number, I'm going to use an array, and ये मैंने इसका एक फिक्स साइज डिफाइन कर दिया है because we have to define the size of array before we are going to use that array. So I have defined this size that I can use up to 500 size of the array. Okay, the concept is that to store the factorial of a number, we let's say I want to find the factorial of 1. So to find the factorial of 1, what I need to use, I need to store only
I need to use only one digit to store the factorial of a number. Okay, so अगर one digit की requirement होगी, so I can use only one index of the array to store this one. Okay, so one factorial के लिए कितने digit की requirement होगी, one की. So what should be the size of array? Again, the size of array should be one. Okay, so next, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, सो वी हैव टू परफॉर्म दिस प्रोसेस whether the number is a smaller number like 5 or whether it is a greater number like 100. So if we are finding the factorial of 100, so we need to multiply 100 with 99, then 98, then 97 down to 1. Okay, so same process we need to follow when we are finding the factorial of a number. So we will start from the base case or the terminating condition. So the smallest size we will require to store the factorial of a number will be only 1. Okay, so here you can see because the factorial of 1 is 1, so the smallest size array which I can require to store the factorial of a number is 1. Are you getting this, class? Yes, ma'am. Yes class. अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, so you can interrupt me anytime. Okay, so basically we are using the concept of array and I just want to tell you कि smallest size array जिसकी मुझे requirement होगी किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए, it is 1. Okay, so we will start from the base case. सो बेस केस के लिए हमने ये कंडीशन देख ली है कि अगर हम चेक करें कि मल्टीप्लीकेशन होते होते नंबर लास्ट में 1 होगा, बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी नीड टू डिक्रीमेंट दैट नंबर ऑलवेज बाय 1. ओके, सो हर बार हम उस नंबर को 1 से डिक्रीज कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली वी आर मल्टीप्लाइंग विद 1. ओके, सो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट जो फैक्टोरियल होगा उसके लिए मैंने एरे क्रिएट कर ली है. मैक्सिमम डिजिट में कितने स्टोर कर ली हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. सो आई एम यूजिंग ओनली वन साइज एरे टू स्टोर द फैक्टोरियल ऑफ 1. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट. If I want to store the factorial of 2, then how many digits I'll require to store the factorial of 2? Because the factorial of 2 will be 2 multiply with 1. Okay, let me write it here. So I just need to multiply 2 with the factorial of 1. So I'm writing it here. 2 multiplication 1 will be the factorial of 2 and I'll be using only one size array to store the factorial of 2. Next, the factorial of 3. So similarly, you need to use only one digit number to store the factorial of 3, because the factorial of 3 is 3 into 2, which is 6. Now, this is the important point here. So, what is the factorial of 4? The factorial of 4 is 6 into 3, that is 24. So, to store 24, I need to use 2 digit, or I need to store 2 digit number. So, to store 2 digit number, I have to define an array of size 2. Okay, so this is the logic we are going to follow to store the factorial of a large number. So what we need to do, we need to check whether we are going to find the factorial of a number and how many digits it require. Okay, so if it require 2 digits, so I need to declare, I need to use 2 size of array. Okay, so ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इसके लिए function drive करेंगे. Okay, so here you just need to understand how we are storing this value, this 2 digit number in array. Okay, so here the factorial of 3, factorial of 4 is factorial of 3, which is 6 into 3, and factorial of 3, which is 6 into 4, which is 24. So how I need to store this? I'll be storing this always in reverse order. Instead of storing 2 4, I'll be storing it like 4 2. So what is the reason behind it? Why I'm storing this number in a reverse order in array? Because you know that array start with index 0, and अगर मैं एरे का साइज इंक्रीज करती हूँ तो एरे का साइज किस साइड इंक्रीज होगा? राइट साइड में इंक्रीज होगा, ना कि लेफ्ट साइड में. ओके, सो जब भी हम किसी नंबर को प्रिंट करेंगे, सो इट इज
easier to just print the number if it is already stored in reverse order instead of using instead of storing that number in same manner. Okay, so यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैं 24 को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर रही हूँ. वाई सो? क्योंकि जब भी एरे इंक्रीज होगी, बिकॉज इट मे पॉसिबल कि जो नेक्स्ट मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करूँ, लेट्स से द फैक्टोरियल ऑफ 5. So just understand this concept. So what will be the factorial of 5? The factorial of 5 will be 24 into 5, which is 120. So to store 120, I'll be increasing array in right side. I'll be increasing the size of array in the right side. Okay, क्योंकि जब भी इंडेक्सिंग स्टोर होगी, इंक्रीज होगी, तो वो किस साइड में इंक्रीज होनी चाहिए? राइट साइड में. सो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में नंबर को स्टोर करती भी हूँ तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आई जस्ट हैव टू प्रिंट द नंबर इन फ्रॉम मैक्सिमम इंडेक्स डाउन टू 0 इंडेक्स. ओके, सो प्रिंट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एरे को मेंटेन करना इस तरीके से कि नंबर आपका एक सीक्वेंस में हो. ठीक है, सो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे कि वी कैन स्टोर नंबर इन रिवर्स मैनर. सो अगर मैं 120 यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ, सो आई विल बी यूजिंग 0 2 1. और इसका एक और रीजन है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में क्यों स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन इजिली मैनेज एरे इन दिस वे. वाई सो? let's have a look on this example again. So you can see the factorial of 3 is 6 and it is a one digit number, so I can store it in array. 4 का अगर मैंने फैक्टोरियल निकाला है, एंड द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. सो मुझे क्योंकि एरे को भी मेंटेन करना है साथ में, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू आई नीड टू while calculating the factorial of a number, I need to manage the array, how to store element in array. Okay, so here you can see what I'm going to use. I'll be using the oldest method of multiplication, simple method जो हम use करते हैं multiplication के लिए. Let's say I want to multiply 6 with 4. Okay, so अभी तक हमने ऐसे कुछ सीखा है. 6 into 4 को अगर मैं multiply करूंगी, so how it will be multiplied with 6? 4 into 6, that is 24. Okay, so 4 is the unit place number and 2 is the carry. और next time अगर कोई नंबर यहाँ से जनरेट होगा, so I'll add this carry with this number, otherwise I'll store this similar to that. Okay, so same concept हम यहाँ पर use कर रहे हैं. So first to multiply 6 into 4, if it is a 2 digit number, so first I need to store this unit place number. Okay, so यूनिट प्लेस नंबर को हम इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर कर देंगे. उसके बाद वी विल चेक वेदर कैरी जनरेटेड और नॉट. अगर कैरी जनरेट हुई है तो उसे नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड कर देंगे, बट इफ देयर इज नो नेक्स्ट टर्म, सो वी विल बी स्टोरिंग कैरी एज इट इज. ओके, सो 4 हमने पहले स्टोर कर दिया, उसके बाद हमने 2 को स्टोर कर दिया, जो हमारा एक न्यू नंबर था. ओके, सो with the reference of carry generation, we can find out whether the size of array is going to increase. Yes class, are you getting my point? तो 24 को जैसे मैंने स्टोर किया, you know 24 is a 2 digit number, और इससे पहले जो मैं array यूज कर रही थी वो एक 1 digit नंबर को स्टोर कर ली थी. so this time to store 24, I need to increase the size of array. okay, तो जब भी हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर, और उस नंबर को इस टाइप से हमें स्टोर करना है सो दैट जो एरे है वो भी मेंटेन रहे, और एक कॉन्सेप्ट या एक लॉजिक हमें यहाँ पर ड्राइव करना है सो दैट वी कैन मैनेज एरे टू स्टोर द फैक्टोरियल ऑफ जनरेटेड नंबर. ओके, सो 24 को अगर मैंने स्टोर किया तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर फॉलो किया? आई जस्ट स्टोर द यूनिट प्लेस नंबर फर्स्ट एट इंडेक्स नंबर 0, और उसके बाद जो कैरी मेरे पास है उस कैरी को मैं नेक्स्ट नंबर में ऐड करूंगी, एंड आई कैन स्टोर एट द नेक्स्ट प्लेस. सो दिस टाइम जैसे ही कैरी जनरेट हुई है, सो आई केम टू नो दैट दिस नंबर द रिजल्ट विल बी हैविंग more number of digit than the previous number or previous factorial. Okay, so जैसे ही कैरी जनरेट हुई है, I came to know कि अब एक 2 digit नंबर जनरेट होगा. so with the help of array, with the help of this generated carry, I can resize array.
ओके, सो जैसे ही कैरी जनरेट हुई है, सो आई कैन रिसाइज एरे। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट देखो, अगर मुझे 120 स्टोर करना है, सो हाउ आई बी स्टोरिंग दिस 120। जो भी रिजल्टेंट आया है प्रीवियस से, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। ओके, so how we basically calculate or perform this multiplication? So we basically multiply 5 with 4, 5 4 के साथ multiply किया and it is 20, so the carry is generated as 2, so we will be adding this carry in the next term. So multiply 5 with 2, it is 10, and the carry should be added with 10. Okay, so जब हम इसमें कैरी ऐड कर रहे हैं, अगेन अ 2 डिजिट नंबर इज प्रोड्यूस्ड विच इज 12. So again, in carry, it is in the reference of carry, we can store 2, and the carry will be uh, added in the next term, and you can see there is no next term, so I'll be writing it here. ओके, सो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वाइल मैनेजिंग और स्टोरिंग द एलिमेंट और दीज डिजिट्स इन द एरे। ओके, सो 120 के लिए मैंने यहाँ पर स्टोर किया इस टाइप से। ओके, सो जैसे ही 120 यहाँ पर स्टोर हो रहा है, यू कैन सी कि विद द हेल्प ऑफ कैरी जनरेशन आई कैन काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट देयर विल बी इन द आंसर। ओके, सो रिजल्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स जनरेट हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तरह से कैरी जनरेशन पर। ओके, एंड हाउ वी आर स्टोरिंग दिस नंबर, सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम नंबर स्टोर कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 विद 4, the number is generated as 0 and carry as 2. So basically we will be using two variable here, one to store the number. Okay, so हर बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए इस टाइप से एक फोर लूप चलाएंगे, या जो भी आपको लूप यूज करना है, सो यू कैन यूज एनी लूप, एंड each time we need to store number first, and in another variable which is carry, we can store the generated carry from the previous multiplication. Okay, so यहाँ पर नंबर स्टोर किया हमने 0 और कैरी यहाँ से जनरेट हुई है 2. So this carry should be added in the next number generated from this step. So 5 into 2, which is 10. Okay, and carry should be added with that 10. So in the next step this number will be 2, और कैरी क्या जनरेट होगी, कैरी आपकी जनरेट हो जाएगी 0, सॉरी 1. इन 12 द नंबर इज 2 एंड कैरी इज 1. तो फिर से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे स्टेप में, तो नंबर इज जनरेटेड एज 0, क्योंकि कोई नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, और कैरी जो जनरेट हुई है, तो वी विल ऐड दैट कैरी इन दैट नंबर, सो इट विल बी 1 प्लस 0, दैट इज 1. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर इज जनरेटेड एज 0 एंड कैरी इज जनरेटेड एज number is generated as 1 and carry is generated as 0. So we are going to store these numbers only. किस ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, सेम इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी आर स्टोरिंग द नंबर इन द सेम ऑर्डर. सो इंडेक्स 0 will be 0, index 1 will be 2 and index 3 will be 1. Okay, I want to explain it again, क्योंकि काफी स्टूडेंट है जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा. आर यू गेटिंग दिस क्लास? अदरवाइज 7 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 के फैक्टोरियल में फिर से नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगे. सो इफ आई एम फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 6, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720. सो आई कैन स्टोर 720 इन दिस वे अगेन. 0 इंडेक्स नंबर, उसके बाद 2, उसके बाद 7. ओके, अब मुझे अगर 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, सो हाउ कैन आई फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 7? To find the factorial of 7, what I need to do, again I need to multiply this 720 with 7. Okay, so let's understand this concept again. So here I'm writing 720 like this. Okay, and I'm multiplying this 720 with 7, because 720 is the factorial of 6. So how can I multiply this 720 with 7? Again multiply 7 with 0, and there will be two numbers or two variable I'll be using to store this result. Okay, so दो नंबर फिर से मैं यूज कर रही हूँ, या दो वेरिएबल में यूज कर रही हूँ. वन इज नंबर, अनदर वन इज कैरी. So what will be the number here in this case? 7 into 0 is 0, so the first number is 0.
So this number should be stored at 0th place or 0th index. Okay, again multiply, and there is no carry generated, so carry is 0, number is 0. Multiply 7 with 2 and it is 14. So number क्या generate होगा यहाँ से 4. Okay, 7 into 2 is 14, so the carry is generated as 1. तो कैरी जनरेट हुई है यहाँ से, सो कैरी शुड बी एडेड विद नेक्स्ट टर्म, जो भी नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन होगा. तो 7 into 7 is 49 and 49 plus carry. So let's write this carry here for your understanding. Okay, so next time क्या हुआ, फिर से 7 मल्टीप्लाई किया 49 and plus कैरी जो प्रीवियस स्टेप से जनरेट हुई है. सो दिस टाइम द नंबर विल बी 0 and the carry will be 5. Okay, 49 plus 1 is 50, so the number will be 0 and the carry will be 5. So what will happen in this case? In this case again you can see more than 3 digit we are going to generate. Okay, so basically हम क्या कर रहे हैं, how we are calculating कि एरे का साइज रिसाइज करना है या नहीं करना है, एरे का साइज इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है. सो बेस्ड ऑन द कैरी प्रोडक्शन, based on the carry production we are calculating कि whether or we are checking or computing whether we need to increment the size of array. So here you can see number is 0, so we have already generated 3 numbers previous to factorial of 6. Okay, so next time carry is remained, so last step में अगर carry 0 नहीं होती है, okay, so in that case we need to increase the size of array, and each time we are increasing the size of array by 1. okay, but कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर हमें array का साइज 1 से इंक्रीज ना करके 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा या 3 से इंक्रीज करना पड़ेगा. इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कैरी जनरेशन, क्योंकि सम टाइम व्हेन वी मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी गिवन नंबर से, सो द पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट कैरी जो जनरेट हो वो 2 डिजिट में जनरेट हो इंस्टेड ऑफ 1 डिजिट. So I'll also show you that with the help of example. So here you just need to understand this time carry is generated as 5 and number is 0. So we need to forward this carry at the next step, and there is no number generation because we have already multiplied all the numbers with 7. Okay, all the digits with 7. So this number should be added at the last index value. Okay, so this 5 should be stored here, नेक्स्ट 0 शुड बी स्टोर्ड हेयर. सो किस ऑर्डर में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में जनरेशन हो रहा है. ओके, सो अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू प्रिंट दिस फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स डाउन टू 0, यानी कि एक डिक्रीमेंट लूप में यूज करूंगी, उसको प्रिंट कर दूंगी. सो इट इज easier to just display the number from last index to instead of maintaining array. okay, समझ में आ रहा है क्लास यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए. यस क्लास, एनी डाउट? हाँ मैम, साइज का इंक्रीमेंट हर कैरी के जनरेशन में एक एक हो रहा है. हाँ, तो 2 से भी होगा, 2 से भी होगा. मैं वो 1 मिनट आपको बता रही हूँ. लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल 25 का. ओके, तो 24 का फैक्टोरियल क्या होता है? I want to find the factorial of 25. Okay, just a minute, let me check कि 25 का फैक्टोरियल क्या होता है. कोई बताएगा क्या होता है 25 का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल? अच्छा, मैं ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया मैंने. 1 मिनट, 15 का फैक्टोरियल निकालते हैं. ओके, तो वी जस्ट नीड टू चेक द फैक्टोरियल ऑफ 14. सो आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे अगर कैरी का साइज, कैरी एक 1 डिजिट नंबर ना होके 2 डिजिट नंबर है, तो कैसे 2 साइज में कैसे हर टाइम पर हम जो एरे का साइज इंक्रीज कर रहे हैं वो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बाय 1 वी आर इंक्रीजिंग बाय 2, और डिपेंड्स ऑन कि जो कैरी जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है. ओके, सो यस, हियर इट इज.
So the factorial of 14. Okay, let me use another slide. Let's say I'm using it here. So let's say we are having a value that is factorial of 14. Okay, so factorial of 14 is basically, let me write it here, 8 7 1 7 8 to 9 8 to 9 1 2 0 0. इज इट करेक्ट क्लास? अगर आपने चेक Yes, किया हो ma'am. 14 का फैक्टोरियल तो यही है, ठीक है। Yes, ma'am. अगर मुझे 15 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू अगेन, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 15. Okay, so how I'll be multiplying this number with 15? Here I'm using a 2-digit number. I'm multiplying the given number with a 2-digit number. So उसको मैं 15 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, कैसे कैरी जनरेट होगी और कैसे नंबर जनरेट होंगे. सो लेट मी राइट 2 वेरिएबल्स हियर. सो नंबर को मैं n लिख रही हूँ और कैरी को मैं c लिख रही हूँ, ठीक है. सो नंबर, here you can count how many digits are there in the factorial of 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so there are 11 digits. तो इसका मतलब क्या है कि 14 के फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए मैंने एक 11 डिजिट एरे कहीं पर यूज की होगी, ठीक है. सो लेट्स से द साइज ऑफ दिस एरे इज 11. ओके, तो 11 साइज की मैं एक एरे यूज कर रही हूँ यहाँ पर. ओके, सो multiply this 15 with the factorial of 14. 15 into 0 is 0, so number will be generated as 0. तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पर नंबर स्टोर कर देंगे as 0. Next 15 and carry is also generated as 0. Again multiply 15 with 0, so number will be 0 and the carry will be generated as 0 again. So again ये भी 0 होगा और आपका ये भी 0 होगा. Fine. Again multiply 15 with 2, so the value will be 30 and the carry will be generated as 3. So let me write it here. Number is generated as 0 and the carry will be 3. Again multiply 15 with 1, so the number will be 15 plus 3 18. So 18 will be there, so number will be 8 in this case and the carry will be generated as 1. Carry is generated as 1. So 15 multiply with 9, so what is this? 135. Okay, 135 plus 1, it is 136. So here in this case you can see the next carry is generated. Let me underline this क्योंकि अब ये 2-digit number है. Okay, so in this case you can see the carry is generated and it is a 2-digit number. So अगर 2-digit number को मैं लास्ट में यहाँ पर ऐड करूंगी तो जब भी ऐड होगा नंबर, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो इस टाइप से इंक्रीज होंगे कि इट मे पॉसिबल इन सम केसेस, मैं नहीं कह रही हूँ कि इस केस में ऐसा ही होने वाला है, तो इट मे पॉसिबल इन सम केसेस कि जो एरे का साइज है वो 2 से इंक्रीज हो. सो लेट्स चेक इस केस में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है. सो आई हैव मल्टीप्लाई 15 विद 9 एंड द रिजल्ट इज 6, यानी कि जो नंबर यहाँ से जनरेट हुआ है इट इज 6 एंड द कैरी इज जनरेटेड एज 13. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए. उसके बाद 15 मल्टीप्लाई विथ 2 30 and 30 plus 13 43. So number is generated as 3 and carry is 4. Correct? So this carry should be added in next step. Multiply 15 with 8, 120 and plus 4. So 124. The carry is generated as 12. Number is 4. Correct class? Okay. So next multiply 15 with next number which is 7. It is 105. 105 plus 4, it is 109. Okay. So number is generated as 9 and carry is generated as 10. So let's write number here. Carry is generated as 10 in this case. Okay, multiply 15 with 1 and it is 15 and 15 plus 10 25. So number is generated as 5 and carry is generated as 2. Next step,
again multiply 15 with 7, so 135, and carry is generated as 2. 135 plus 2 is 137, so it Ma'am, is 105. क्या, yes, क्या हुआ? Ma'am, 15 into 7. 105. 135 नहीं. oh yeah, हाँ 105. 105 plus 2 is 107, so 7 is the number and carry is 10. Okay, just a minute. फिफ्टीन विद 8 120. ओके, एंड जो कैरी जनरेट हुई है, what is the value of carries here? It is 10. So 15 120 plus 10 is 130, so the number will be 0. और कैरी यहाँ से जनरेट हुई है वो कितनी जनरेट हुई है? 13. सो हेयर इन दिस केस यू कैन सी जो लास्ट में कैरी जनरेट हुई है मल्टीप्लीकेशन करते हुए, इट इज अ 2 डिजिट नंबर. Okay, so if it is a 2 digit number, so because we are storing in array digit wise, so it will require 2 more array index to store the factorial of 15. Okay, so अगर मैं इसको 13 को as it is यहाँ पर लिखती हूँ, तो you can see these two numbers, to store these two numbers I need to use 2 more blocks in array. Okay, so इस टाइम जो array का size increase हो रहा है वो कैसे increase हो रहा है? It is increasing by 2 in this case. Okay, so here you need to understand how will we increase the size of array. So उसके लिए फिर हम एक अलग से loop लेंगे to check whether carry is having more than 1 digit number. Okay, so अगर हमें ये check करना है कि how many digits are there in that particular number, so C is having 2 digit number which is 13. So next time ये जो 13 होगा I cannot store it as 13, क्योंकि इसके लिए मुझे स्टोर ऐसे करना पड़ेगा, पहले मैं 3 स्टोर करूंगी, उसके बाद मैं 1 स्टोर करूंगी. ठीक है, सो टू स्टोर दिस 13 as a number in array I need to segregate this number as well. Okay, so are you getting this? How we are going to segregate the number? We are just performing the modulus operator by 10. We just need to perform the modulus operator by 10. So अगर मैं इस पर mod operator लगा देती हूँ 10 से, so what will happen in this case? You can see the remainder will be 3, means I have segregated this number as a unit place number. तो 13 में मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर कैरी में मोर देन 1 डिजिट है, तो उसके लिए भी हम एक लूप यूज करेंगे अलग से टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन कैरी. ओके, और उसके लिए केस लगाएंगे कि until कैरी बिकम 0. ओके, सो जब तक कैरी 0 नहीं होती है वी जस्ट नीड टू सेग्रीगेट ऑल द नंबर्स. ओके, सो अगर 1 डिजिट नंबर होगा तो एक ही स्टेप में चलेगा फॉर लूप या वाइल लूप जो भी आप यूज कर रहे हो. ओके, बट अगर मोर देन 1 डिजिट है सो देयर विल बी मोर देन 1 डिजिट विल बी प्रोड्यूस्ड, और हर एक डिजिट को हम सेग्रीगेट कर लेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से. सो इन दिस केस कैरी इज अ 2 डिजिट नंबर. सो एक नंबर जनरेट किया है हमने और ये एक 2 डिजिट नंबर है. सो जो हम इसके लिए लूप अलग से यूज करेंगे कैरी की चेकिंग के लिए कि वेदर इट इज हैविंग मोर देन 1 डिजिट, तो उसके लिए हम वहां पर अप्लाई करेंगे सेम यही फॉर्मूला. तो जो भी कैरी जनरेट हुई है सी mod 10 वी विल बी अप्लाइंग हेयर, और यहाँ से जो भी वैल्यू जनरेट होंगी उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ पर हम 3 लिखेंगे. अगेन वी विल अपडेट दिस सी एज 13 डिवाइड बाई 10, एंड 13 डिवाइड बाई 10 पर फिर से अगर मैं अप्लाई करूंगी मोड ऑपरेटर, सो यू विल सी कि जो यहाँ से नंबर आएगा, सो इट विल बी लाइक इट विल बी जनरेटेड लाइक 13 डिवाइड बाई 10 विच इज 1, और 1 पर फिर से अगर मैं मोड ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ विद 10, सो इट विल बी 1. सो हियर इन दिस वे अगर 2 डिजिट नंबर के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली वी कैन परफॉर्म विद 3 डिजिट नंबर. सो अगर यहाँ पर लेट्स से आई एम फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 206, सो अगर 205 का कोई जो भी फैक्टोरियल होगा ऑब्वियसली कोई एक बड़ा नंबर होगा, तो अगर उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 डिजिट नंबर से, लेट्स से 206 से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो अगेन यू कैन सी कि जब हम एक बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ जनरेटिंग अ ग्रेटर कैरी. ओके, समझ में आ रहा है? सो 15 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई भी अगर नंबर है, सो जो चांसेस होंगे कितनी डिजिट का नंबर जनरेट होगा? हमेशा एक 3 डिजिट का नंबर.
15 को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से n इज अ नंबर एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद 15, तो हर एक स्टेप में अगर उसको मैं डिजिट वाइज मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हर एक स्टेप में जो भी नंबर जनरेट होगा, जो ज्यादा चांसेस होंगे नंबर जनरेट होने के, अगर ये भी एक 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है या बड़ा नंबर है, तो हमेशा जो भी एक नंबर यहाँ से प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अ 3 डिजिट नंबर। आर यू गेटिंग दिस क्लास? सो ऐसे केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से एक लूप यूज करना पड़ेगा टू चेक कि जो कैरी जनरेट हो रही है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ लार्जर नंबर। ओके, समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं? तो जितने भी नंबर्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं उनको 1 बाय 1 एरे इंडेक्स पे स्टोर करते जाएंगे, एक लूप वहां पर यूज करेंगे, और यहाँ से जो कैरी जनरेट हुई है, जैसे यहाँ पर हमने किया, उसको स्टॉप कर देंगे यहाँ से, और फिर जो कैरी जनरेट हुई है फिर से उसको सेग्रीगेट करेंगे 1 बाय 1 एंड वी विल स्टोर इट इन दिस वे अगेन। पहले यूनिट प्लेस नंबर आएगा, फिर उसका 10th प्लेस नंबर आएगा, फिर 100th प्लेस नंबर आएगा, जो भी नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक 2 डिजिट नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, सो यू कैन सी कि एक 2 डिजिट कैरी जनरेट हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब हम एक 3 डिजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आउटपुट आएगी वो एक 4 डिजिट नंबर होगा। सो अगर हम 4 डिजिट नंबर में चेक करते हैं कि कैरी क्या होगी, तो कैरी विल बी ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, सो उस टाइम जो एरे के साइज रिसाइज होंगे, पॉसिबिलिटी होगी कि 3 डिजिट नंबर 3 साइज इंक्रीज करना पड़ेगा हमें एरे का, एक फैक्टोरियल से दूसरे फैक्टोरियल पर जाने के लिए, या एक फैक्टोरियल जो हमने पहले से स्टोर किया है उससे दूसरा फैक्टोरियल जनरेट करने में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस नंबर से उसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं एक सूडो कोड के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल राइट द प्रोग्राम। ओके, सो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया है, सो आई कैन प्रोसीड। Shall we proceed, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here is the so basically we are performing a 2-step process to calculate the factorial of a number. So in one step we are calculating the factorial of a number. In second step we are storing that number in array. Okay. तो कैलकुलेशन भी हम साथ में कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कैसे करना है एरे में, उसको भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वी आर यूजिंग 2 steps here. So in first step we will be finding the factorial, in second step we will be performing multiplication as well to maintain the size of array. Okay, so in first step you can see first we need to create an array. Okay, so जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्रीवियस स्टेप में बताया था, लेट्स से आई हैव क्रिएटेड एन एरे एंड द साइज आई हैव डिफाइंड एज 500. ओके, सो वट एवर साइज यू वांट टू यूज यू कैन डिफाइन, क्योंकि एरे का साइज अनलिमिटेड होगा, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, तो आप कितने भी साइज के एरे डिफाइन कर सकते हो। सो हियर आई एम डिफाइनिंग एन एरे एंड लेट्स से आई एम यूजिंग अ मैक्स साइज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, आई वांट टू यूज दिस मैक्स, और इसका कॉन्सेप्ट सब लोगों को पता ही है। So if I want to define the size of array in the form of variable, what I need to use? I need to use a macro. तो macro based questions भी आप लोगों से पूछे जाते हैं interviews में. So this is one macro, hash define max. So what I need to use, what I need to write to define this variable name for the size of array, क्योंकि array का size कभी भी variable नहीं हो सकता, it should be a fixed value यानी कि constant. So I can use this max variable instead of 500. तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, लेट्स से अगर ये मैं एरे यूज कर रही हूँ res या a एरे, so instead of writing 500 या constant here I can use this. ये आप लोगों ने किया भी होगा डेटा स्ट्रक्चर के, आपने जब प्रोग्राम्स किए होंगे या DSTL के प्रोग्राम्स किए होंगे, आई होप यू हैव डन इट बिफोर। किया आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. सबको पता है इसका कि क्या मीनिंग होता है? तो दिस इज बेसिकली अ मैक्रो। सो मैक्रो के रोल्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर मैं पूछती हूँ कि किन्हीं 5 मैक्रोज के नाम बताइए,
So can anyone tell me the name of any 5 macros used in C language? Okay, any 2 macros? एक तो हमने लिखी दी है यहाँ पर, हैश डिफाइन. Yes class, anyone? Include. Hash include. Okay. और अच्छा ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. सो प्लीज सर्च कि कौन कौन से, चेक इन योर बुक्स कि कौन कौन से मैक्रोज होते हैं. तो 5 मैक्रोज के एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए. आप लोगों ने इक्वेशंस भी डिफाइन की होगी मैक्रो को यूज करके. यू कैन ऑल्सो डिफाइन द इक्वेशन यूजिंग मैक्रोज. ओके, तो इस पे बेस्ड भी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. जब भी आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, सो दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, so in first step what we are doing, we are just creating the size of array. Okay, and here we have declared the array. उसके बाद क्या करेंगे, इनिशियली हम कितने साइज की एरे लेके चलेंगे जो एक्चुअली हमें यूज करना है, कंज्यूम करना है. तो इनिशियली वी विल टेक ओनली 1 साइज एरे. ओके, so what we need to do, we just need to initialize the array value at 0th इंडेक्स. तो 0th इंडेक्स पर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे और इसके साइज में हम डाल देंगे इनिशियली 1. ओके, सो बेसिकली वी आर यूजिंग द साइज 1 एरे एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. कब तक, जब तक हम 1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं. स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल इज 1. तो इनिशियलाइज हमने क्या किया है कि वी आर यूजिंग एन एरे एंड इनिशियली द साइज ऑफ एरे इज 1. ओके, सो एक वेरिएबल हमने यूज किया है एरे साइज के लिए. दिस इज द वेरिएबल वी आर यूजिंग फॉर एरे साइज. तो वी आर यूजिंग whatever the name of array, res, resultant array you can say. So resultant array size is 1 initially. Okay, और फर्स्ट इंडेक्स पर जो हमने इनिशियली स्टोर किया है इट इज 1. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा. क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फैक्टोरियल है वो चाहे 0 का हो चाहे 1 का हो, इट इज 1. ओके, सो हम सबसे पहले फर्स्ट हमने वैल्यू स्टोर कर दी, इनिशियलाइज कर दिया. ओके, देन अब अगर कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है, सो आप उस नंबर को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा उससे एक डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करोगे. फिर नेक्स्ट स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, देन नेक्स्ट कहाँ तक, 2 तक. ओके, सो इसके लिए हम एक लूप यूज करेंगे क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस एन. सो एन क्या है, वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. सो लेट्स से जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया अभी, 5 का अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, सो टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5 दिस एन शुड बी 5. ओके, सो 5 को कहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से लेकर 5 तक. ठीक है, तो उसके लिए हम एक लूप यूज करेंगे फ्रॉम 2 to 5. और 2 to 5 मल्टीप्लीकेशन के दौरान आपको वो वैल्यूज स्टोर भी करनी है एरे में. सो हाउ कैन वी स्टोर दोज वैल्यूज इन एरे, उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है वो ये है कि वी आर स्टोरिंग द नंबर इन एरे इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, सो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस नंबर है उसको स्टोर करेंगे 0 इंडेक्स पर. उसके बाद जो फर्स्ट प्लेस नंबर है उसको 1 इंडेक्स पर, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर एंड सो ऑन. ओके, अप टू जो भी रिजल्टेंट आएगा. ओके, सो अप टू द साइज ऑफ एरे, जो भी न्यू साइज जनरेट होगा या प्रीवियस साइज होगा. ओके, so initially if we understand this concept based on the example to find the factorial of 5, so here the loop will run for 2 to n, 2 to 5. okay, again इस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर ही हमें दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे एंड दूसरा फंक्शन क्या होगा कि जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे. एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन वी आर यूजिंग द ओल्डेस्ट मेथड, जिसमें हमें क्या करना है कि नंबर को बार बार जो भी आपका गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए बार बार हम एक यूनिट नंबर से या सिंगल डिजिट नंबर से उसको बार बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर स्टोर करेंगे, साथ साथ में कैरी भी रिकॉर्ड करते जाएंगे. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग, जो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, सो मल्टीप्लाई एक्स. सो व्हाट इज एक्स, इनिशियली एक्स इज 2 और एक्स बार बार इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन. ओके, so multiply x with
जो भी एरे में स्टोर्ड है, वही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. सो टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दिस 2 वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 2 विद द factorial of previous number. Okay, so 2 multiply with 1. So we are following the same concept here. So multiply this 2 with array content and update array and its size to store the multiplication result. So अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, you can see only one digit number will be generated as result. So what we need to do, we need to update जीरोथ इंडेक्स वैल्यू. सो जीरोथ इंडेक्स पर अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया यहाँ पर 2. ओके, सो जीरोथ इंडेक्स में हमने नेक्स्ट स्टेप पर 2 लिखा एंड साइज तो रिसाइज ही नहीं हुआ बिकॉज टू चेक कि हमें साइज रिसाइज करना है या नहीं करना है, हम कैरी यूज करेंगे. ओके, सो इन दिस केस कैरी इज जनरेटेड एज 0. सो जब हम लूप यूज करेंगे कैरी के लिए, सो जो वहां पर टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी वो होगी until carry is non-zero. Okay, so if carry is 0, so we need to stop, means we are not resizing. Okay, but if carry is non-zero, so we will check how many digits are there in that carry. So digits हम कैसे काउंट कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस लैब में ही एक प्रोग्राम कराया था, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिकर्सिव वे. ओके, सो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से क्लियर है कि मोड ऑपरेटर अगर हम बार बार अप्लाई करते हैं, मोड 10 अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पर, तो एक एक यूनिट एक एक डिजिट सेग्रीगेट होती जाएगी और बार बार हम नंबर को अपडेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 10. ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कैरी के नंबर चेक करने के लिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन कैरी. सो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस सूडो कोड? यस क्लास. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग एरे, वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग एरे एंड इट्स साइज, देन वी आर यूजिंग अ फॉर लूप बेस्ड ऑन द नंबर्स, जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना है. हर एक स्टेप पर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एरे कंटेंट से एंड अकॉर्डिंगली वी विल स्टोर द वैल्यूज इन एरे. ओके, एंड उसी के बेस पर हम एरे का साइज कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अनदर function, and this function is multiplication function, and in this function we are passing two argument. One is the array itself and another one is the number, जो नंबर हमने for loop में यूज किया था x. ओके, सो एक तरह से क्या है कि अगर ये for loop मेरा चल रहा है यहाँ से 2 से 5 तक. ओके, so this for loop will run from 2 to 5. So how many time it will run? For 2, for 3, for 4, for 5, means 4 time it will run. So 4 time इस for loop के अंदर अगर मैं multiplication function call कर रही हूँ, so this function will be called for 4 time. Are you getting this class? So हर एक time पर array different होगी, हर एक time पर ये x number different होगा. So first time it will run for x2, यहाँ पर कुछ array होगी. So let's say अगर हम 5 factorial निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कैसे रन कर रहा है? To find the factorial of 5. So first when we are passing this x as 2, so initially array is 1. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे एरे में जो कंटेंट होंगे ये होंगे 2, नेक्स्ट स्टेप में एरे में जो कंटेंट होंगे वो होंगे 6, नेक्स्ट स्टेप में एरे में जो कंटेंट होंगे वो होंगे 2 डिजिट नंबर. और किस ऑर्डर में होगा वो 2 डिजिट नंबर? अगेन इन दिस ऑर्डर, यानी कि एरे में होगा 42. नेक्स्ट स्टेप में एरे में क्या होगा, जब 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे इट विल बी 120, यानी कि 0 to 1. ओके, सो इस टाइप से ये रन करेगा. सिमिलरली ये जो वैल्यूज है चेंज होती रहेगी. सो पहले ये 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, एंड अल्टीमेटली इट विल बी 5. सो दिस फंक्शन विल बिहेव लाइक दिस, यानी कि इसमें बार बार वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पास होगी और ये 4 टाइम्स के लिए कॉल होगा, बिकॉज वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन विद इन the for loop we are using in factorial. Okay, so let's understand the concept of this function, multiplication function, how it is working to calculate the size of array and maintaining the array. Okay, so in this function we are using another variable and the name of this variable is carry. Okay, so I have already explained the concept of this variable carry. Okay, so this is the similar variable. Carry is initialized as 0. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, डू फॉलोइंग. अगेन वी आर यूजिंग अ फॉर लूप फ्रॉम 0 to size -1 ऑफ एरे. ओके,
सो इनिशियली अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 1, ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हमने एरे का साइज इसमें पास किया है, तो वो क्या पास किया हमने, वो पास किया है 1। फर्स्ट टाइम जो एरे का साइज इनिशियलाइज किया इट इज 1, सो फर्स्ट टाइम इट विल रन ओनली सिंगल टाइम फॉर 0 to 0, यानी कि i इक्वल टू 0 के लिए रन करेगा और नेक्स्ट स्टेप में स्टॉप हो जाएगा, ओके। सो हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन जब भी हम कॉल कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि इनिशियली द एरे इज 1, जो हमने इस स्टेप से रिसाइज की थी, इस स्टेप से इनिशियलाइज की थी, सो इनिशियली एरे इज 1 एंड दिस साइज इज आल्सो 1, ओके। और वहीं पर हमने फॉर लूप कॉल किया और जैसे ही फॉर लूप कॉल किया वहीं पर हमने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, ओके। सो इनिशियली दिस इज 0 to 0, then find the value of, so basically what we are doing here, जो मैंने आपको अभी समझाया था, so we are multiplying the content of array which is initially 1 with the number, okay। so initially जो हमने x पास किया है वो क्या पास किया है 2, okay। so 1 is multiplying with 2 and we are adding the carry, so let me use c instead of carry, okay। so initially carry is 0 1, carry is 0, so the number will be calculated as 2, okay। so value is generated as 2, so what we are going to do now with this 2, we are going to store this 2 in array index number 0, यानी कि array के कंटेंट को अब हम अपडेट कर देंगे। so अब अगर पहले से array में 1 स्टोर्ड था, तो नेक्स्ट स्टेप पर array में क्या स्टोर हो जाएगा 2, okay। so this is the concept we are going to use, okay। then update this which we have already updated here, okay, by storing last digit of production in it, okay। so here again you need to understand this concept कि अगर वो more than one digit multiplication से जो रिजल्ट आएगा it is more than one digit, so we need to store only unit place number first, okay। so जैसे अगर 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वहां पर 24 जनरेट होगा, so we have to store only 4, okay। एंड जो भी एरी जनरेट होगी उसको अपडेट कर देंगे, and here in this case because only one digit number is updated and carry is 0, okay, so we have done with it। फिर अगेन ये लूप चलेगा एंड दिस टाइम i इक्वल टू 0 के लिए था, अब i इक्वल टू 0 टू, बिकॉज दिस टाइम जो भी एरे का साइज होगा वो फिर अपडेट हो जाएगा इसके लिए। तो पहले ये फोर लूप कंप्लीट होगा, for loop has been completed क्योंकि एक टाइम चलना था, so these steps had been completed। so next step is put all digits of carry in the array and increase size by number of digits in carry। so in this case carry is automatically 0, so we don't have to put it anywhere। so क्या करेंगे, ये वाला स्टेप रन ही नहीं करेगा इसके लिए, अगेन we will jump at the next step। तो फिर से मल्टीप्लीकेशन फंक्शन कॉल होगा, so we have called for 1 और this 2 अब कॉल करेगा 2 and 3 के लिए। so the value has been computed as 2, so नंबर में जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 और इस टाइम x की वैल्यू होगी 3। तो जब यहाँ पर 2 और 3 में हम आएंगे तो अगेन इट विल चेक, फिर से एक टाइम लूप चलेगा 0 to 0, अगेन इट विल मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट नंबर। so this time because this number is 2, so number is 2 and x is passed as 3 or carry is 0 initially, so the number will be generated as 6। so again you can see the concept is same। next step होगा वैल्यू अपडेट हो जाएगी, so here we have updated the value, ठीक है। फिर से रन करेगा, कैरी जनरेटेड एज 0, so एक ही टाइम के लिए रन करना था, it will stop, again it will update all the values and resize the array, again carry जनरेट नहीं हुई है, so we don't have to update the size of array, okay। तो ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे इसमें। समझ आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ओके, लेट्स ओपन द कंपाइलर। so I'm opening the compiler and with the help of this pseudo code I'll be writing this code on the compiler। okay, let me explain this code here। कंपाइलर पे रन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड ऑन द कंपाइलर आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, किसी को सूडो कोड में प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ आ गया सबको?
इस क्लास यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी भी थोड़ा। अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा जब पूरा एक बार कोड करेंगे ना। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट कोड है जो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। प्लस अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आई गारंटी कि अगर आपसे कभी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आप इस प्रोग्राम को कभी भी लिख सकते हैं किसी भी टाइम, इफ यू अंडरस्टैंड दी होल कॉन्सेप्ट। या फिर से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सूडो कोड की हम बात करते हैं, अभी आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान देना है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था सिर्फ वही ध्यान देना है कि हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं एरे में, और कैसे हम कैरी जनरेट कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि नंबर कैसे जनरेट कर रहे हैं और कैरी कैसे जनरेट कर रहे हैं। ओके, so this is the complete program. We have already defined this function. So pre-declaration is here. जो भी फंक्शन हम यूज करेंगे उसको हमने प्री डिक्लेयर कर दिया है, जिसका मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी आपको सूडो कोड बताया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्टोरियल फंक्शन कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, सो हियर वी आर पासिंग सम नंबर n जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर हम इस टाइम 5 के रेफरेंस में ही समझने की कोशिश करें तो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। So let's say this number is given as 5 जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। So how we will be calculating this? This array has been defined. So let's say this max is defined as 500 जो हमने अभी यूज किया था, and we have initialize array as 1. Okay, तो सेम एग्जांपल के रेफरेंस में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या स्टोर कर दिया मैंने? 1। ओके, एंड एरे के साइज में मैंने क्या स्टोर किया? इनिशियली 1। फाइन, आई एम गोइंग टू यूज अ लूप बेस्ड ऑन द नंबर। सो दिस नंबर इज पास्ड एज 5। सो यू नो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी? 2 to 5। ओके, नेक्स्ट we will resize the array by calling this function multiplication function। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में ही कैरी जनरेट होगी और नंबर जनरेट होंगे, एंड बेस्ड ऑन कैरी जनरेशन वी विल डिटरमाइन वेदर टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे और नॉट। ओके, ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी आर एट दिस स्टेप। ओके, तो ये स्टेप्स कब परफॉर्म करेंगे? जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स जंप ऑन दिस स्टेप, यानी कि चेक करेंगे ये फंक्शन कॉलिंग कहाँ हुई है। सो दिस फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू, और जिसको हम किस में स्टोर कर लेंगे? एरे के साइज को रिसाइज करने में। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम शायद लिखा हुआ है। यस क्लास, एनी डाउट टिल नाउ? okay, so here is another function we have called, जिसमें हमें सिंपली इस फंक्शन को ऐसे लेना है कि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जो हम मेथड कभी स्कूल टाइम में यूज करते थे। ठीक है, सेम मेथड वी आर यूजिंग हियर। सो हियर इन दिस फंक्शन वी आर पासिंग सम वैल्यूज। एक तो एरे को पास किया हमने, एरे का साइज पास किया है, और जिसके लिए हमने फॉर लूप कॉल किया था उसको हमने पास किया है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? इनिशियली 2। इट मीन्स दिस फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फंक्शन विल बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हमने ये फॉर लूप के अंदर लिखा है। ओके, सो पहले ये x 2 के लिए कॉल करेगा। तो दिस टाइम वी आर पासिंग वैल्यूज। सो x इज इनिशियली 2, और एरे में क्या है? 1, और एरे का साइज क्या है? 1। ओके, सो वी हैव इनिशियलाइज दिस कैरी एज 0, एंड इफ i इक्वल टू 0, एक लूप चलाएंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वहां पर। सो इनिशियली इट विल बी फ्रॉम 0 to 0, द लूप विल बी फ्रॉम 0 to 0। वाई सो? क्योंकि साइज क्या है? 1 है, एंड इसके लिए हमने यूज किया है लेस देन 1। लेस देन 1 इज 0, तो एक लूप चलेगा आपका 0 से लेकर 0 तक, यानी कि 1 टाइम के लिए कॉल करेगा। किसके लिए? x2 के लिए। सिमिलरली x3 के लिए करेंगे, फिर 4 के लिए करेंगे, फिर 5 के लिए करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट आएगा तो प्लीज मुझे बता देना, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सो हियर
एक वेरिएबल और हम यूज कर रहे हैं जिससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको जनरेट करने के लिए। एक तरह से जो हम फाइनल नंबर जनरेट कर रहे हैं वो तो PROD में स्टोर कर रहे हैं, और जो कैरी जनरेट कर रहे हैं वो इस कैरी में स्टोर कर रहे हैं। सो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक नंबर वेरिएबल यूज किया था, इट इज PROD, प्रोडक्शन। ओके, सो प्रोडक्शन विल बी जनरेटेड लाइक इन फर्स्ट स्टेप इट विल बी जनरेटेड, क्योंकि एरे में क्या है 1, सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद, क्लास में बार बार सेम ही चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो इनिशियली ये वैल्यू पास होगी 1 × 2 + 0। ओके, जैसे ये वैल्यू पास होगी प्रोडक्शन विल बी अपडेटेड एज 2। ओके, सो अब यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है 2। एरे में क्या स्टोर होगा, एरे में हम यूनिट प्लेस वैल्यू ही स्टोर करेंगे एक टाइम पर। ओके, एंड हियर यू कैन सी वी आर स्टोरिंग एट द इंडेक्स नंबर आई, और इंडेक्स आई की वैल्यू क्या है 0। ओके, so it will depends on the value of the array प्रीवियस वैल्यू, और जो न्यू वैल्यू जनरेट होगी उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो प्रोडक्शन में अगर सिंगल डिजिट होगी तो हम एज इट इज उसको स्टोर कर लेंगे। सो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मोड 10 अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन सेग्रीगेट द डिजिट्स। ओके, सो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता है कि यहाँ से जो नंबर पास हुआ है वेदर इट इज 1 digit number, 2 digit number or 3 digit number, so we have to use same concept again and again. Okay, so इस कॉन्सेप्ट में शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। so basically 0th इंडेक्स पर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, प्रोडक्शन, यानी कि 2 mod 10। ओके, समझ में आया? तो एक तरह से डिजिट्स को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं यहाँ पर, हमें नहीं पता है कि जो प्रोडक्शन से वैल्यू जनरेट हुई है ये 1 डिजिट है या 2 डिजिट है। ओके, सो यहाँ से जो भी वैल्यू जनरेट होगी मोड 10 जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक सिंगल डिजिट नंबर ही होगा हमेशा। 2 विल बी द आंसर हियर। सो एक तरह से क्या है कि एरे के 0 इंडेक्स पर 2 अपडेट हो गया है। फाइन, कैरी विल बी जनरेटेड हियर। तो कैरी को हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करके। कैरी क्योंकि इस स्टेप से क्या जनरेट हुई है 0, सो इट विल बी 0 डिवाइड 10 विल बी 0। ओके, सो द लूप विल कंटिन्यू। ठीक है, तो लूप फिर से चेक करेगा, आई को इंक्रीज करेगा, बट क्योंकि 1 टाइम के लिए चलना था सो इट विल स्टॉप, तो 2 के लिए स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या चेक करेगा, क्योंकि सेम फंक्शन में एक और हमने फंक्शन कॉल किया है while carry। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन। सो इसका ही मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि 1 डिजिट नंबर कैरी अगर 1 डिजिट नंबर होगी तो 1 से इंक्रीज होगा, 2 डिजिट नंबर होगी तो 2 से इंक्रीज होगा। तो हाउ वी आर चेकिंग और आइडेंटिफाइंग कितने डिजिट, कितने साइज से अरे को इंक्रीज करना है। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन सी कि 0 जनरेट हुआ है, तो अगर 0 जनरेट हुआ है कैरी, सो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू पास होगी वो एज अ 0 पास होगी। सो अगर वाइल में पहले ही 0 आ गया तो दिस लूप विल नॉट रन। आर यू गेटिंग क्लास दिस? तो अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो कोई साइज हमें इंक्रीज नहीं करना है। सो बेसिकली हम जो साइज को इंक्रीज कर रहे हैं वो इस लूप के अंदर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ कैरी। तो अगर कैरी नॉन जीरो होगी तभी ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ से जो साइज रिटर्न होगा वो एज इट इज 1 ही रिटर्न होगा, क्योंकि हमने ये लूप यूज नहीं किया है एंड रिसाइज हमने नहीं किया है। ओके, अब ये किसके लिए कॉल करेगा, अब ये कॉल करेगा मल्टीप्लीकेशन x3 के लिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लूप यूज किया है वो 2 to 5 यूज किया है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 5। ओके, तो यहाँ से वैल्यू फिर से पास होगी 3, और अभी एरे में क्या है 1, और यहाँ से क्या पास हो रहा है 1। तो इसके लिए कैसे काम करेगा, अगेन साइज इज 1, तो फिर से 0 से 0 तक ही रन करेगा। कैरी को हमने फिर से इनिशियलाइज कर दिया है, सो दिस टाइम द प्रोडक्शन विल बी the content of array multiply with the value of x which is 3 plus carry is 0। so यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होगी वो जनरेट होगी आपकी 6। ओके, एंड अब एरे के कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे, फिर से यूनिट प्लेस को ही पहले अपडेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू जनरेट हुई है इट इज 6, और 6 पर अगर हम अप्लाई करें मोड 10 सो इट विल बी 6 अगेन, और यूनिट डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, सेग्रीगेट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरी फिर से जनरेट हुई है 0, सो 3 के लिए भी हमें 1 डिजिट की ही रिक्वायरमेंट है, 3 फैक्टोरियल के लिए भी।
फिर से यहाँ पर आएगा कैरी इज 0, अगेन इट विल नॉट रन, और फिर से जो साइज रिटर्न होगा इट विल बी 0 अगेन। ओके, अब फिर से यहाँ पर वैल्यू अपडेट होगी। ओके, लेट मी अपडेट दी वैल्यू। प्लस आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये रन कर रहा है प्रोग्राम। सो बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है। सो मल्टीप्लीकेशन के टाइम ही हम एरे का साइज चेंज कर रहे हैं, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था। ठीक है, सो दिस टाइम द वैल्यू ऑफ दिस x इज 6, सॉरी, वैल्यू ऑफ x इज 4, the value of array is 6 and the size of array is 1। ओके, फिर से ये कॉल करेगा, साइज क्योंकि 0 1 है तो एक ही टाइम रन करेगा। सो बेसिकली अगर साइज पहले से जो वैल्यू है हमारे पास, अगर वो साइज उसका ज्यादा है 1 से, एक डिजिट 1 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर है, सो ये जो लूप है जो हम यूज कर रहे हैं, so you will understand the concept of this loop also जैसे हम रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिर से 1 के लिए रिपीट करेंगे, अगेन ये 1 टाइम रन करेगा, और दिस टाइम द फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी कैलकुलेटेड। सो फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी array content multiplication with 4। ठीक है, so it will be generated as 24। yes class, any doubt from your side? आई थॉट कि किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाला है। अच्छा ठीक है, ओके, कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो बताइए। आ रहा है। ओके, so the value of array is 6 and we are multiplying this 6 with x which is 4, so the value will be generated 24 this time। okay, so here you will understand the concept कि कैरी का क्या यूज करेंगे, जो हमने ये while loop यूज किया है इसका क्या यूज है। ओके, so 24 will be generated। so यहाँ से अगर हम अप्लाई करेंगे इस पर mod 10, so again it will segregate its value, और यूनिट प्लेस वैल्यू को ये पहले सेग्रीगेट कर देगा। ओके, तो 24 मोड 10 विल रिटर्न 4। ओके, और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगी वो क्या जनरेट हो जाएगी, 2। कैसे? अगेन वी आर अप्लाइंग 24 डिवाइड बाई 10, तो इट विल बी 2। ओके, तो एक तरह से हमने नंबर को सेग्रीगेट कर दिया है इन 2 स्टेप में। ठीक है, तो दिस विल बी 2। क्लियर क्लास? Now this time you can see carry is not a 0, it is a non-zero number which is 2। so this while loop will run for one time। one time क्यों करेगा? क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो 1 ही है। ओके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कैरी को अपडेट कर रहे हैं, और कैरी को कैसे अपडेट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 10 से। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो जब हम नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल करेंगे। So here we are storing another value at another index of array। okay, so पहले हमने स्टोर कर लिए वैल्यू यहाँ पर so एक तरह से हमने यहाँ पर इंडेक्स 0 पर वैल्यू स्टोर कर ली है। so let me write it here। so 4 is the value of array at index number 0। तो अभी हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू अपडेट करनी है। so here we are updating the value at index number 1, क्योंकि array का साइज क्या है, 1। so this will be index 1 of array। okay, and it will hold the value generated from carry। so अगर कैरी से जो वैल्यू जनरेट हुई है, अब हमें फिर से क्लियर नहीं है कि कैरी जो जनरेट हुई है वो 1 डिजिट है कि 2 डिजिट है कि 3 डिजिट है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी नंबर। ओके, सो नंबर क्योंकि हमारा अभी तक 1 डिजिट ही था, तो इसलिए जो कैरी जनरेट होगी वो 1 डिजिट ही होगी। ओके, सो एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर क्या अपडेट हो जाएगी वैल्यू, फिर से जो वैल्यू होगी वो होगी 2 कैरी मोड 10। तो यहाँ पर हम हमेशा एक डिजिट को सेग्रीगेट करके ही लिख रहे हैं हमेशा जब भी स्टोर कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग मोड ऑपरेटर अगेन एंड अगेन। ओके, सो एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर हमने स्टोर कर दिया 2 एंड कैरी विल बी अपडेटेड हियर। तो कैरी की यहाँ पर वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 10 विच इज 0। ओके, क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर था, अगर 2 डिजिट नंबर होता तो डिवाइड करने के बाद डिविडेंड कुछ और होता। ओके,
सो यहाँ पर जो रिजल्ट, जो एरे का साइज है उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1, बिकॉज जो हमने कैरी मिली है वो अभी 1 डिजिट है. सो इट विल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कैरी. कैरी में जितने भी डिजिट्स होंगे उसी के बेसिस पर ये वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप के बेसिस पर ये साइज रिसाइज होंगे. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे एंड इट विल बी 2. ओके. सो कब हमने एरे का साइज डिसाइड किया? जब हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया. सो अगेन क्योंकि नंबर जो हमारा है वो 5 है, तो फिर से ये रन करेगा. और अभी किसके लिए रन करेगा? 5. और एरे हमारे पास अभी रिटर्न हुई है इन दिस वे 4 2. ओके. यूनिट ये 0 इंडेक्स पे 4 है और 1 इंडेक्स पर 2 है. यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है एरे का साइज वो रिटर्न हुई है 2. सो नाउ इट विल चेक फॉर 5 ऑल्सो. इन दिस केस यू कैन सी जो वाइल लूप चलेगा वो 2 टाइम चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस एरे है उसका ही साइज, एक तरह से जो इनपुट एरे है उसका ही साइज क्या है? 2. ठीक है. जो हमने अभी एग्जांपल किया था, जैसे मैंने स्टोर किया था, जैसे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो हमने एग्जांपल कुछ ऐसे किया था कि 4 को ऐसे स्टोर किया, उसके बाद 2 को स्टोर किया, एंड दिस टाइम वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 5. सो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, अब ये 2 साइज तो हमें यूज करना ही करना है. ओके. ये थर्ड साइज डिपेंड करेगा किस पर? जो कैरी जनरेट होगी. तो ये हम 2 साइज के एरे यूज करके चल रहे हैं, जो यहाँ पर इस फोर लूप से आपको क्लियर हो रहा है. ओके. सो बिकॉज दिस टाइम एरे साइज इज 2, सो दिस फोर लूप विल रन फॉर 2 टाइम्स, यानी कि 0 से लेकर 1 तक चलेगा. ओके. फिर से यहाँ से वैल्यूज जनरेट होंगी. कैसे? जो प्रोडक्शन में जनरेट होगा वो जनरेट होगा नंबर at 0th index into x which is 5. तो 0th इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? 4. सो एक एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं. सो वी आर मल्टीप्लाइंग 4 with 5 and we are adding the carry. We have again initialized carry as 0. तो यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होगी वो क्या जनरेट होगी? 20. ओके. सो 4 plus 5 4 into 5 20. और फिर से हम एरे के इंडेक्स नंबर 0 पर क्या स्टोर करेंगे? 4 into 5 से जो जनरेट हुआ है यूनिट प्लेस पर 0. ओके. तो यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट हो जाएगी वो स्टोर होगी, वो स्टोर होगी आपकी 20 mod 10, और 20 mod 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो इंडेक्स नंबर 0 पर तो हमने स्टोर कर दिया 0, और कैरी हमने स्टोर कर ली. कैरी जो हमने यहाँ से स्टोर किया है इट इज 2. कैसे कैलकुलेट किया? 20 डिवाइड 10 विच इज 2. ओके. कैरी जनरेट किया है. उसके बाद अभी फोर लूप 2 टाइम चलना है 5 के लिए. सो अब कैरी सॉरी i1 के लिए फोर लूप चलेगा. सो i1 के लिए फिर से कैलकुलेट करेंगे. सो i1 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो इंडेक्स नंबर 1 पर स्टोर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? 5 से. ओके. सो 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 5, और जो कैरी जनरेट हुई है उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. सो प्रीवियस स्टेप से जो हमें कैरी मिली है वो है आपकी 0. एट दिस नंबर ईयर. तो यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होगी वो जनरेट होगी 10, और 10 mod 10 जब आप करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0 अगेन. Oh sorry, carry is added as 2. तो यहाँ से वैल्यू जनरेट होगी 12 mod 10 विच इज 2. ओके. तो यहाँ से जनरेट हुआ 2, और फिर से हम नंबर अपडेट कर देंगे, यानी कि कैरी अपडेट कर देंगे, और कैरी हो जाएगी आपकी 12 डिवाइड बाई 10 विच इज 1. ओके. सो एक तरह से हमने इंडेक्स नंबर 1 पर स्टोर कर लिया है 2. फिर से कैरी जनरेट हो गई है बिकॉज कैरी इज नॉन 0 नंबर. ओके. सो अगेन दिस वाइल लूप विल रन, और ये हमें बताएगा कि हमें एरे का साइज रिसाइज करना है. ओके. सो हाउ विल इट वर्क्स? So again we will be storing value at the next index, that is 1. जो मैंने यहीं पर पहले ही स्टोर कर दिया, अभी हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी इस स्टेप में. ओके. एंड इन दिस स्टेप वी आर अपडेटिंग द कैरी. कैरी इस टाइम क्या हो जाएगी? 0. ओके. सॉरी 1. ओके.
So basically we are passing, we are storing value at index number 2. array तुमने डिफाइन कर ही रखी है पहले से. Okay, so we are using second index also, index number 2 also, and we are updating the value of this index as value of carry. Okay, so value carry 1 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, carry फिर से अपडेट हो जाएगी, और this time the carry will be 0. Okay, and size को resize कर देंगे, and size of the array will be 3. फिर से चेक करेंगे, this time carry is 0, so loop चलना ही नहीं है. Okay, and it will return the size of array as 3. और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है, जो array में रिटर्न हुई है, वो रिटर्न होगी ये. So this is the complete process to find the factorial of 5. अगर सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे अदर वेरिएबल्स के लिए, तो इसी टाइप से आपके आंसर्स आएंगे. हियर इन द मेन फंक्शन वी आर जस्ट पासिंग